Hello friends, welcome back to my YouTube channel Gulbarga Coaching Academy. Friends, today we are going to discuss about the lesson sources. Sources. Urdu में ज़राए. So, what is the meaning of sources? So, sources in the past, the human beings have created so many things to lead their life or to spend their lives. If the things used by the human beings in the past, if that things are remain, that is called as a sources by the historians. पुराने ज़माने में लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे ज़राए बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी. तो अगर वो चीज़ें आज हमें मिलती हैं या अगर मौजूद है तो उसको क्या कहते हैं? सोर्सेस. बाय द हिस्टोरियन, तारीखदानों के हिसाब से क्या है वो चीज़ें सोर्सेस है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द एग्रीकल्चर टूल्स, द रिलीजियस बिल्डिंग्स, द पैलेसेस, द ruins, other ruins, for example the bangles, bones. So these are considered as a sources by the historians. So in the sources, the literary sources are considered as a primary source for writing history. जो भी रिटर्न वर्क है उसको क्या है? प्राइमरी सोर्स कहा जाता है या जरिया कहा जाता है हिस्ट्री लिखने के लिए. सो द सोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. लिटरेरी सोर्सेस, archaeological sources. Archaeological sources. So literary sources means the sources which are available in the written form. और जो भी क्या है लिखी हुई चीजें हैं वो जो कि बुक्स हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लिटरेरी सोर्सेस बोलते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मीन्स जो भी बिल्डिंग्स है, पैलेसेस है, फोर्ट्स है, दैट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. So here the literary sources is divided into two parts, written and oral. Written, oral sources. Here the written sources is further divided into two parts, that is the native literature, native and foreign literature. Foreign literature. So the written sources means जो भी चीजें क्या है लिखी हुई है या जो रिटर्न सोर्स में है, जो भी क्या है रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है, that are called as a written sources. Oral means that is passes from the one generation to another generation through the words of mouth, folk songs, folk ballads के थ्रू जो भी चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो रही है उसको क्या है ओरल सोर्सेस बोलते हैं. नेटिव रिटर्न सोर्सेस को क्या है दो पार्ट्स में डिवाइड करें है, दैट इज द नेटिव लिटरेचर एंड फॉरेन लिटरेचर. Native literature means the sources which are written are the books which are written in the native languages of the India. For example, the Sanskrit language, Brahmi language, Kushtivi language, Telugu, Marathi, Kannada language, and the Oriai, Odishai, and the so many languages जो Indian native languages है उसमें जो भी sources available है या written sources available है, that literature are considered as a native literature. So for example, the Kautilya's Arthashastra. So Kautilya's Arthashastra, that book is also an example of native literature. King Hala's Gata Saptasati. So King Hala जो क्या है शातवाहन डायनेस्टी का किंग था, so he wrote a book which is known as the Gata Saptasati. Next, Banabhatta's Harshacharite. So during the time of Harsha, a famous poet that is Banabhatta. So he wrote the biography of Harshavardhana, that is the Harshacharite. Next, Bairani is Tariq Feroz Shahi. So during the time of Feroz Shah, so the Bairani he wrote Tariq Feroz Shahi. After that the Pampa he wrote the Vikrama Arjuna Vijaya. And उसके बाद क्या है चांद बरदाई, he wrote the Prithvi Raj Rasu, about the life of Prithvi Raj Chauhan. So all these books are the example of the native literature. So next, the foreign literature. So friends, as we know that in the ancient medieval time, there are so many historians, the ambassadors, the businessmen, they have visited to India and they have recorded their observation. They have recorded their experience in India in their books. For example, Megastan, he visited to India during the time of Mauryas.
So he wrote a book which is known as the Indica. So Indica क्या है, ये बुक लिखा Megastan and Babar wrote the Tuzke Babari and like this the Farishta Muhammad Farishta wrote the Tariq Farishta. So these are considered as the foreign literature or foreign literary sources. And one more important book, that is the Yun Shan Siu Ki and Fahyans Goko Ki. So these books are also the example of foreign literature. फॉरेन लिटरेचर मतलब जो दूसरे कंट्रीज के लोग हमारे बारे में लिखते हैं वो क्या है, फॉरेन लिटरेचर है. मतलब उन्होंने लिख रहे हैं, हिस्ट्री हमारी है. सो दैट इज द फॉरेन लिटरेचर. नेक्स्ट द ओरल लिटरेचर. सो ये द नेटिव एंड फॉरेन लिटरेचर से क्या हमारे को बहुत सारी चीजें मालूम होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम. सो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट स्टेजेस पे क्या है, हमारे इंडिया की सोशल कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी. सो ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मालूम होती है, वी गॉट दिस ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू द नेटिव फॉरेन लिटरेचर. नेक्स्ट द ओरल सोर्सेस. Oral sources means the sources which are passes from one generation to another generation through the words of mouth, through the folk songs, folk ballads. जो क्या है, folk song, folk stories के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होती है, वो चीजों को क्या बोलते हैं हम, oral literature. So that are considered as a oral literature. So बहुत सारी जगह पे क्या है, फेमस लेजेंड्स है, बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज है. सो बहुत सारी स्टोरीज है अबाउट द ब्रेवरीज ऑफ टीपू सुल्तान, कित्तूर रानी चिन्नम्मा, संगोली रायना है, सिंदूर लक्ष्मण के बारे में बहुत सारी फेमस स्टोरीज है. सो वो क्या है, किताबों में भी लिखा हुआ है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या है, कहानियों के थ्रू स्प्रेड हो गया है. सो ये क्या है, ओरल लिटरेचर. जैसे संगोली रायना की ब्रेवरी के बारे में आज भी क्या है, फेमस है कित्तूर में, उसके बारे में क्या है, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती. एंड टीपू सुल्तान की ब्रेवरी के बारे में भी बहुत सारी क्या है, चीजें हमारे दादा परदादाओं से हमें सुनने को मिली है, हमारे फादर से हमें सुनने को मिली है. सो ये क्या है, ओरल लिटरेचर. नेक्स्ट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. Archaeological sources divided into 4 parts. So first one, inscription. Inscription. Second, coins. Third, monuments. Fourth जो है, other ruins. Monuments, other ruins. So archaeological sources is not only available in the surface of earth. मतलब जो archaeological sources है वो क्या है, जमीन में भी मिल सकते हैं, जमीन के ऊपर भी या अर्थ के ऊपर भी हमारे को मिल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब archaeological sources जो भी जैसे इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, मॉन्यूमेंट्स है, और क्या है, अदर रुइंस जो भी क्या है, बैंगल्स है उस टाइम के, बोन्स है. सो दैट आर द अदर रुइंस. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, जमीन में भी मिल सकते हैं, जमीन के ऊपर भी हमारे को क्या है, मिल सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, came into light due to the process of excavation. जब खुदाई हुई तो क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमारे को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने को मिला या उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली. सो इससे मालूम होता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या तो जमीन के ऊपर भी अवेलेबल हो सकते हैं या हिडन डेप्थ ऑफ अर्थ भी, मतलब जमीन के अंदर भी. सो उस टाइम जब एक्सीबिशन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जब डिस्कवरी हुई तो उससे क्या है, हमारे को बहुत सारी चीजें मिली. जैसे फॉर एग्जांपल द रुइंस ऑफ बिल्डिंग्स, इमारत के बकियात मिले, रुइंस ऑफ बिल्डिंग्स, बोन्स मिले, बहुत सारे बैंगल्स मिले, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरीज मिली और एनिमल्स के बोन्स मिले. एंड द हिस्टोरियंस दे एनालाइज दैट सोर्सेज बाय अप्लाइंग द वेरियस साइंटिफिक मेथड्स. सो वो जो भी चीजें मिली थी उसको क्या है, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू उसको एनालाइज करें ताकि उस टाइम के लोगों की जिंदगी कैसी थी वो जानने के लिए उसको क्या करें, एनालाइज करें बाय अप्लाइंग द वेरियस साइंटिफिक मेथड. जैसे फॉर एग्जांपल द कार्बन सी. Next, first one, the inscription. In the archaeological sources, first one, inscription.
inscriptions means the engraved writings that are called as the inscriptions. So पहले जमाने में लोग क्या करते थे, दे यूज टू राइट ऑन द लीव्स, बनाना लीव्स, बहुत सारे डिफरेंट पत्तों पे लिखते थे, तो वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, ज्यादा टाइम तक क्या है वो रहते थे नहीं. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, द पीपल दे डिस्कवर द न्यू मेथड ऑफ writing history. So that is the inscription. So inscription क्या है, that mostly written on the rocks, जैसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों पे लिखते थे. मेटल्स मीन्स जो भी लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल्स है. आइवोरी मतलब जो भी हाथी के जो दांतों से बनी हुई चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं, आइवोरी. एंड टेरिकोटा आर्ट्स पे क्या है, मैसेजेस को लिखना शुरू करे ताकि आने वाली जनरेशन क्या है उसको मैसेज को पढ़ना. सो लॉन्ग लास्टिंग जो भी मटेरियल्स है उस पर लिखना शुरू करे. सो उसमें जो स्पेशल है दैट इज स्टोन. सो ज्यादा जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं वो क्या है, पत्थरों पे लिखे गए हैं, स्टोन्स पे लिखे गए हैं. Next, the inscriptions are considered as the reliable sources or imported sources because it has a direct relationship with king. जो inscriptions क्या है, बहुत ही reliable है, मीन्स बहुत ही क्या है, इसका जो रिलेशनशिप है वो किंग के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ऐसा नहीं कि अशोका के टाइम के मिले इंस्क्रिप्शंस और दूसरे किंग्स के साथ उसको कनेक्ट कर रहे, नहीं. उसके जो किंग्स, इसलिए क्या है, inscriptions are considered as the main sources or the reliable sources because that inscriptions have a direct connection with the kings. So जिस टाइम के मिले उस टाइम की क्या है इंफॉर्मेशन हमारे को मिलते. सो अशोका ही इज नोन एज द किंग ऑफ इंस्क्रिप्शन, क्योंकि आज भी जो हमारे को इंस्क्रिप्शन बहुत सारे मिले इंडिया में वो क्या है, अशोका के इंस्क्रिप्शन है. सो उनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, उसकी जो इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज थी वो क्या थी, ब्राह्मीण लैंग्वेज थी. और जो उनकी जो लैंग्वेज यूज करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज थी. मीन्स इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज थी वो ब्राह्मी थी और जो वो यूज करते थे लैंग्वेज वो क्या थी, प्राकृत लैंग्वेज थी. अब जैसे किंग जैसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन मीन्स ये भी एक इंस्क्रिप्शन है जो क्या है, समुद्रगुप्ता के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन दैट इज आइवोरी इंस्क्रिप्शन. सो दैट इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ पुलिकेशी सेकेंड. अनदर वन इज द हाथीकुंबा इंस्क्रिप्शन अबाउट द किंग हाथीकुंबा इंस्क्रिप्शन. सो वो भी क्या है, इससे भी हमारे को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं. नेक्स्ट, द उत्तरा मेरूरू इंस्क्रिप्शन. Another most important inscription that is Uttara Meruru inscription. So Uttara Meruru inscription that provides information about the local self-government during the time of चौड़ास. तो चौड़ास के टाइम पे क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था, फेमस था, मतलब उनका जो बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का. सो उससे क्या है, हमारे को उत्तरा मेरूरू इंस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन मिलती. नेक्स्ट, कॉइन्स. कॉइन्स नो डाउट कॉइन्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे होते हैं कॉइन्स, बट वी गेट द मेनी मोर इंफॉर्मेशन और मेनी मोर थिंग्स टू नो फ्रॉम द कॉइन्स. बहुत सारी चीजें क्या है कॉइन्स से जानने को मिलती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ किंग्स, किंग का नाम मालूम होता. एंड द मेटल्स, उसके जो मेटल है उससे मालूम होता. द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ किंग, अगर मेटल गोल्ड कॉइन है तो उनके जो किंग मेंट करा उसको उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, बहुत अच्छी थी. अगर सिल्वर या कॉपर कॉइन है तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, मीडियम थी या ज्यादा क्या है, एवरेज थी. एंड अगर आयरन कॉइन्स है तो वो क्या है, बहुत ही किंग उस टाइम का वो बहुत ही पुअर था. एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके डायनेस्टी का नेम मालूम होता, किंग जो कॉइन मेंट करा उसकी डायनेस्टी का नेम. एंड उसके बाद क्या है, उसका टाइम क्या था, उसकी सेंचुरी क्या थी, वो कौन सी सेंचुरी में कौन सी डायनेस्टी का किंग था. एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके जोग्राफिकल एक्सटेंट क्या थी, उसके किंगडम का सिंबल क्या था. वो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी गेट थ्रू द कॉइन्स. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल द समुद्रगुप्ता ही इन्वेंटेड द 7 डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. सो गोल्ड 7 तरह के दूसरे 7 क्या है, अलग अलग तरह के गोल्ड कॉइन्स मेंट करा था कौन, समुद्रगुप्ता. तो इससे मालूम होता है कि समुद्रगुप्ता के टाइम पे क्या है, उसका टाइम बहुत ही क्या है, गोल्डन पीरियड टाइम था इंडिया में. नेक्स्ट, द मॉन्यूमेंट्स. So monuments means monuments like for example the palaces, forts, pillars. So all these are also considered as the main sources for writing the history. So monuments में क्या थे, palaces जो महल, फोर्ट्स, किले, एंड जो पिलर्स है वो भी क्या है, मॉन्यूमेंट्स है. सो मॉन्यूमेंट्स से क्या है, हमारे को बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है. ये टाइम ये किंग्स बनाया हुआ है, ये क्या है,
इनके टाइम का है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो गोल गुम्बद है बीजापुर का, उससे भी क्या है हमारे को बहुत सारी चीजें जानने को मिलती, जैसे उस टाइम के टेक्नोलॉजी कैसी थी, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का जो ये था वो कैसा था। एंड उसके बाद क्या है, ताजमहल से हमारे को ये मालूम होता है शाहजहां और मुमताज की लव स्टोरी के बारे में। एंड उसके बाद जो राणा विजय स्तंभा था राणा चित्तौड़ का, उससे क्या है राणा कुंभ की विक्ट्री के बारे में मालूम पड़ता। और उसके बाद क्या है जो अजंता एलोरा एंड एलिफेंटा की जो पेंटिंग्स है, उससे हमारे इंडिया की स्कल्पचर डेवलपमेंट के बारे में मालूम पड़ता। एंड नेक्स्ट द टेम्पल्स ऑफ आयुड़े पट्टदकल्लू, सो उससे क्या है हमारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के बारे में मालूम पड़ता, टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के बारे में। और उसके बाद जो श्रीरंगपट्टनम का फोर्ट है, उससे ये मालूम होता है डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी और जो मदरसा है बीदर में विच इज बिल्ड बाय द महमूद गावा, उससे मालूम पड़ता हाउ द पीपुल ऑफ द past are the medieval and modern Indian history are the medieval ancient Indian history, how they give the more and more importance to for the development of education. So नालंदा यूनिवर्सिटी और मदरसा ऑफ बीदर से मालूम पड़ता कि एजुकेशन के लिए भी क्या काम करे, कितनी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिए। नेक्स्ट द अदर रूइंस, other ruins means the bangles, bones are the jewelries which are found during the time of excavation at the different places. इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस पे एक्सीबिशन में बहुत सारे प्लेसेस पे क्या खुदाई हुई तो बहुत सारी चीजें मिली, नॉर्मल चीजें जैसे बोन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड ज्वेलरीज, टेरिकोटा आर्ट्स मिले एंड आइवोरीज मिली एंड वो क्या है बैंगल्स मिले, इयररिंग्स मिले। तो वो क्या है दैट सोर्सेस आर कंसिडर्ड एज द अदर रूइंस। सो ऑल दीज सोर्सेस आर आइडेंटिफाई आर एनालाइज बाय अप्लाइंग द C14 और कार्बन 14। सो इनके जो टाइम है, पीरियड है, मालूम करने के लिए क्या है एक केमिकल यूज करते हैं या ये यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कार्बन 14 और C14। जज़ाकल्लाह।